Good afternoon, please. Welcome back, everybody. Welcome back. Good afternoon. Welcome back. I'll be discussing Prabjit, and let's come to that section. We'll see. Welcome back. My blessings always there. Welcome back, everybody. Welcome back. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Pranam, Gauri. Good afternoon. Yes, I'm good, Muskan. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Welcome back. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. We'll just wait for some students to come back. Yeah, I'm good. Trishika. Oh, thank you, Gauri. हाँ क्योंकि मेरे इंट्रोडक्शन लेक्चर्स they sum up everything. Man, Monica, what do I say? Yes, I drink a lot of coffee, black coffee. मेरी preparation, well, it was like any other preparation. I was very determined कि मुझे पुलिस में ही जाना है. Kept on preparing. I had nothing. मतलब 24 घंटे बस दिमाग में पुलिस चलती थी. God was kind, but of course you have to be focused. चलिए, I guess we can start now. So let's start our BNSS. अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं
All these things are going to come in great details. So don't worry, अगर by chance कुछ clear नहीं हो रहा है, it was just a road map कि सीआरपीसी कैसे लिखी गई है. So हो सकता है कोई छोटे छोटे पॉइंट्स ना समझ आ रहे हो या डाउट्स आ रहे हो. वो they are natural to come because naturally I was covering the entire CRPC in one lecture or two lectures. So इसलिए don't worry, everything, every section is going to be, each and every section. All those who have studied from me from July batch, you know, CPC का हम एक एक ऑर्डर कर चुके हैं. ये तो CRPC है. So don't worry. Let's quickly go back to where we stopped yesterday. We had started our journey from the criminal justice system. An offense was committed. The offense was committed under either under BNS or any special or local law. The procedure is the same, which is BNSS. Unless there was a specific procedure given in that local or special law, in that case, that procedure given in special or local law would override BNSS. For this context, we saw sections 4 and section 5. Now, the criminal justice system we saw can be started in two ways. First was in case it happens to be a cognizable offense. Since all offenses are offenses against the state, that is why the state undertakes to do everything right from A to Z regarding the redressal. For this purpose, we saw that firstly, even your FIR is loss free by the state in a representative unit of the state, which is the police station. In case we have a FIR registered, then it comes to a logical conclusion. In other words, what is investigation? Investigation is collection of evidence. So the state undertakes to collect evidences on behalf of the victim. Since an offense is against the state, anybody can start the criminal justice system, either through a FIR or even by a complaint. Now, we saw that once an investigation starts, the IO has his job of collecting evidences, and various tools have been given. Whether it is investigation from the accused, we have to arrest him, we have to search, all those provisions are given. In case he does not still come, or even if a witness does not come, then the coercive things have been written in CRPC. Once the IO comes to a conclusion, that conclusion is basically his allegation. That allegation is in BNSS and CRPC, it is called a final report. फाइनल रिपोर्ट दो तरह की हो सकती है. एक जिसमें वो एलिगेशन लगा रहा है कि हाँ जो एफआईआर में बोला गया वो सही है, तो ऑफेंस क्या हुआ और किसने किया, ये चीज आती है फाइनल रिपोर्ट में. दूसरा हो सकता है कि फाइनल रिपोर्ट वो ये दे दे कि ऑफेंस हुआ ही नहीं, ये झूठी रिपोर्ट थी. इन दैट केस आई टोल्ड यू दैट इन कॉमन पार्लेंस पुलिस में हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो उसमें हम एफआर अगर दारी है तो अदम वकू है, अदम पता है या और तरह है, और अगर अप्रूव हो गया है तो फिर हम चार्जशीट या फिर चलान डाल देते हैं थ्रू द डीएसपी एंड द पीपी इज आल्सो इन्वॉल्व्ड. एक बार चला गया ये हमने फाइनल रिपोर्ट डाल दी, पुलिस का काम खत्म, कोर्ट का काम शुरू. यहां से कोर्ट का प्री ट्रायल प्रोसेस शुरू हो जाता है. सो जहां हम कहते हैं प्री ट्रायल प्रोसेस शुरू हो गया, कोर्ट पहली बार अपना दिमाग लगाती है कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ और किसने किया. उसको कहते हैं टेकिंग कॉग्निजेंस. वो कॉग्निजेंस क्यों ले रहा होता है? क्योंकि एक बार वो अपने दिमाग लगा के फाइनलाइज कर लेता है अपने दिमाग में कि ये ऑफेंस हुआ है और इसने किया है, तो अब नेचुरली वो ट्रायल करेगा. तो ट्रायल के लिए वो बुलाता है उसको. अगर वो ऑलरेडी है जेल में तो उसको बुला लेगा जेल से, और अब उसको एकॉस्ट करेगा कि मैंने अपना दिमाग लगाया है, सारे एफआईआर के बाद सारी इन्वेस्टिगेशन पढ़ी है और मेरी नजर में आपने ये ऑफेंस किया है, क्या आप इस चीज को मानते हो, डू यू एक्सेप्ट? अगर वो कहता है हाँ, तो वहीं पे उसका सेंटेंसिंग हो जाएगा, कन्विक्शन एंड सेंटेंसिंग हो जाएगा, मामला खत्म, उसको जेल में भेज देंगे. अगर वो कहते हैं नहीं, तो फिर व्हाट डू यू वांट? आई वांट ए ट्रायल. और यहां से ट्रायल की शुरुआत हो जाती है. ट्रायल का जहां तक सवाल है, 4 डिफरेंट टाइप के ट्रायल्स हैं, कल हमने देखे, डिपेंडिंग कि कितना सीरियस ऑफेंस है.
More serious the offense, higher the court. BNS में कोई, जैसे कि मैंने बोला, कोई यूनिफॉर्म ये नहीं बताया गया कि ये सारे ऑफेंसेस सेशन में जाएंगे, या ये कॉग्निजेबल हैं, या यहाँ ये बेलेबल हैं। हर हर सेक्शन को, हर ऑफेंस को सेपरेटली डील किया गया है शेड्यूल 1 में। हर सेक्शन में बताया गया है ये नाम है उस ऑफेंस का, ये बेलेबल है, ये कॉग्निजेबल है, और ये वाला कोर्ट उसको ट्राई करेगा। ये कंपाउंडेबल है या नहीं कंपाउंडेबल, ये शेड्यूल 1 में नहीं दिया गया, पर सेक्शन 320 सीआरपीसी में आता है। हम फिर वहां जाके, वहां टेबल दिया हुआ है, वहां से हम देख लेते हैं। सबसे अगर सीरियस ऑफेंस है तो वो जाएगा सेशन में। दो तरह के केसेस हैं, एक वारंट केस और एक समन केस। समन केस वो होते हैं जिनकी सजा 2 साल तक होती है। 2 साल से ऊपर जितने भी केस हैं वो सारे वारंट केसेस हैं। अब 2 साल से ऊपर तो सारी केसेस हैं ऑलमोस्ट, इसीलिए हम उनको दो हिस्सों में बांट देते हैं। वारंट केसेस जो सेशन कोर्ट ट्राई करेगा, और वारंट केसेस जो मैजिस्ट्रेट ट्राई करेगा। अब इतना लंबा ना लिख के हम सीधा लिख देते हैं सेशन ट्रायबल केसेस, पर होते वो भी वारंट केसेस हैं। तो पहले हमने देखा वो वारंट केसेस जो सेशन ट्रायबल है, उनका सबसे इलैबोरेट प्रोसीजर है, क्योंकि वहां पे डेथ पेनल्टी भी है। उसके बाद आते हैं वारंट केसेस ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट्स। उसके बाद आते हैं समन्स केसेस, और उसके बाद आते हैं समन्स केसेस में भी अगर कोई बहुत ही छोटे मामले हो तो वो समरी ट्रायल्स में चले जाते हैं। दूसरा तरीका था कि हम सीधा कोर्ट में चले जाएं। इसमें जितने भी नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं वो तो कोर्ट में ही जाएंगे, क्योंकि सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस की एफआईआर दर्ज हो सकती है। और जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट केस बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉग्निजेबल केसेस कंप्लेंट केस में नहीं जा सकते। मैं अगर चाहूं तो कंप्लेंट केस में कॉग्निजेबल केस भी ला सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो दोनों भी शुरू कर सकता हूं। मैं एफआईआर भी शुरू कर सकता हूं और साथ साथ कंप्लेंट भी कर सकता हूं। हाउएवर अगर ऐसा होता है कि दोनों इकट्ठे शुरू करता हूं, फिर प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया हुआ है। In that case, the magistrate will hold on to the inquiry of the complaint, कि जब तक पुलिस की हमारे पास रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम इसको बैक बर्नर पे रख देते हैं। उसके आने के बाद फिर हम दोनों को देख लेंगे। अगर मैं पुलिस की जो जो इन्वेस्टिगेशन है उससे मैं संतुष्ट हूँ, तो मैं फिर वही इनको मर्ज कर दूंगा। अगर संतुष्ट नहीं हूं तो मैं अपने लेवल पे अलग इंक्वायरी कर लूंगा, और यहाँ मैं जहां जहां हो सकता है वहां पे मैं मर्ज कर सकता हूँ। इट इज ऑल माय प्रेरोगेटिव। इस केस में क्या होता है कि जैसे मैं पिटीशन डालता हूं कि मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है, चाहे नॉन कॉग्निजिबल है या कॉग्निजिबल है, तो स्टेप नंबर 1 होता है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो आपको बुलाता है और आपको कहता है कि अपने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट विटनेसेस हैं वो उनको, या एविडेंसेस हैं, वो लेके आओ। वो पहली हियरिंग होती है आपकी। उसके अंदर अगर उसको लगता है कि पहली हियरिंग में अब हम उसको कॉग्निजेंस ले सकता हूं, तो वहीं कॉग्निजेंस ले लेता है। अगर उसको लगता है कि नहीं, इसमें 2-3 एविडेंसेस से पता नहीं चल रहा, मुझे डिटेल्ड और एनालिसिस चाहिए, तो वो फिर पुलिस को कह सकता है कि मेरे बिहाफ पे तुम इन्वेस्टिगेट करके आओ। यानी मेरी इंक्वायरी का हिस्सा तुम, मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरा हिस्सा तुम इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेट, क्योंकि इंक्वायरी वर्ड मैंने बताया था पुलिस के साथ यूज नहीं हो सकती, तो पुलिस मेरे बिहाफ पे इन्वेस्टिगेट करके आएगी, और उसको मैं चाहे एक्सेप्ट करूं या ना करूं। या पुलिस अगर सब करके लाई है, मुझे लगता है कि गलत कर रही है, तो हो सकता है मैं दूसरे पुलिस ऑफिसर को दे दूं, या अगर पुलिस में मेरे को विश्वास ही नहीं है, कोई वकील को भी दे सकता हूँ कि वकील साहब आप बड़े अच्छे इंसान हो, आप करके ले आओ। तो दैट इज माय प्रेरोगेटिव। एक बार मैंने मैंने डिटेल्ड इंक्वायरी कर ली, या मैंने पहली इंक्वायरी में ही सोच लिया कि हाँ ये आगे बढ़ाने के योग्य है, आगे बढ़ाने के योग्य है, मैं क्या डिसाइड कर रहा हूं कि यस आई कैन मूव द मैटर फॉरवर्ड। ऐसे मामलों में नाउ आई विल कॉल द एंटायर पीपल, जो जितने भी अभी यहाँ जो हमारा ये कंप्लेनेंट है, उसको कहेंगे तुम अपने सारे दोबारा लेके आओ। और अब क्यों दोबारा लेके आओ, क्योंकि अभी तक मैंने एक्यूज को नहीं बुलाया था, एक्यूज का कोई रोल नहीं था। सो एक्यूज को हम बुलाएंगे कि अब तुम्हारे सामने ये चीजें बोलेंगे, तुम्हें अगर क्रॉस करना है तो कर लो। तो एक्यूज उनको अब क्रॉस कर सकता है। अब जब वो क्रॉस कर लेगा, तो अब मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि मुझे कॉग्निजेंस लेना है कि नहीं लेना। अगर कॉग्निजेंस लेना है तो फाइन, अब मैं उसको बोलूंगा तुमने अभी सबसे पूछताछ कर ली,
दोबारा बुलाना है क्या ट्रायल के लिए? वो कहता है हाँ जी दोबारा बुलाओ, फाइन दोबारा बुलाऊंगा। अगर वो कहता है नहीं जरूरत नहीं है सर, दोबारा टाइम वेस्ट क्यों करते, मैंने कर लिया ऑलरेडी, तो फाइन, उसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, डिपेंड्स। देन इन दैट केस द ट्रायल विल बिगिन, और अब ट्रायल में एक एक को वापस बुलाया जाएगा और एक एक का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा एंड फाइनली जजमेंट आ जाएगा। ये दो तरीके से हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता है। हाउएवर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब हम एफआईआर दर्ज करते हैं, कंप्लेंट केसेस तो आई मेरे पास रहे हैं। सपोज मेरे पास एक कंप्लेंट केस आया, मैंने उसका पहले ये इंक्वायरी कर ली और जरूरत पड़ी तो डिटेल्ड इंक्वायरी कर ली। उसके बाद मुझे पता चला ये तो रेप का मामला है, ये तो सेशन ट्रायबल है, ये मैं तो ट्राई नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, कॉग्निजेंस पहले लूंगा उसका। कॉग्निजेंस लेने से पहले क्या करूंगा, इशू प्रोसेस करूंगा, एक्यूज को बुला के उसके सामने करवाऊंगा। और उसके सामने जब मैंने पूछताछ करा ली, अब मैं कन्विंस्ड हूं कि हाँ ये रेप का मामला है, प्राइमा फेशी लग रहा है, अब मैं उसको सेशन ट्रायल में भेज दूंगा। सिमिलरली जहां एफआईआर का मामला था, वहां पे जैसे ही मेरे पास पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट डाली, मैंने उसमें देखा, उसमें अपना दिमाग लगाया, लगा ये तो सेशन ट्रायबल है, तो अब मैं फिर इसको सेशन कोर्ट में भेज दूंगा। यानी कि सेशन कोर्ट से जाने से पहले मेरे से छन के जाएगी टू द सेशन कोर्ट, सीधा सेशन कोर्ट में नहीं जाएगी। क्यों? बिकॉज टेकिंग कॉग्निजेंस में ही ये पार्ट आता है कि ये मैजिस्ट्रेट ट्राइबल है कि ये सेशन कोर्ट ट्राइबल है। ये जो प्रोसेस होता है जहां हम सेशन कोर्ट को भेजते हैं, इसको कहते हैं कमिटल प्रोसीडिंग्स। एक्यूज का जहां तक सवाल है, एक्यूज को मैं या तो पुलिस छोड़ दे, 173 में वो जब अपनी फाइनल रिपोर्ट डालती है, वो कह दे कि जी इसने किया ही नहीं है ऑफेंस, या तो वहां छूट सकता है। या दूसरा मौका होता है जब वो टेकिंग कॉग्निजेंस करता है, जब कॉग्निजेंस ले रहा होता है मैजिस्ट्रेट, उसको लगे कि बंदा गलत पकड़ लिया पुलिस ने, तो वहां छोड़ सकता है। या अगर कोई एक्यूज को एक्यूज नहीं बनाया, तो पहली बार एक्यूज कोर्ट को वहां बनाता है, तो उसको मैं एक्यूज बना भी सकता हूं, छोड़ भी सकता हूं। जहां मैं उसको छोड़ रहा हूं, उसको हम एक्विटल नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक एविडेंसेस नहीं आए थे, इसलिए हम उसको डिस्चार्ज कहते हैं। डिस्चार्ज मैंने आपको बताया था डबल चौपाटी नहीं लगता, क्योंकि डिस्चार्ज पे अगर नए फैक्ट्स आ जाते हैं, वी कैन कॉल हिम बैक ऑन द न्यू फैक्ट्स। पर एक बार एक्विटल या कन्विक्शन होता है तो फिर डबल चौपाटी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 लगता है। उसके बाद वंस द दोनों मर्ज हो गए, तो सेशन कोर्ट का तो अपनी सजा दे देगा, मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के ट्रायल दो तरह के हो गए, एक जो एफआईआर के थ्रू आए पुलिस केसेस, और एक जो एफआईआर के थ्रू नहीं आए। तो एफआईआर के थ्रू जो नहीं आए, प्लीज रिमेंबर दो तरह के केस होते हैं। एक होता है कि जहां पे कंप्लेनेंट खुद गया, उसने कहा जी मेरे साथ ऑफेंस हुआ है, और कॉग्निजेंस ले लिया मैजिस्ट्रेट ने और आगे बढ़ा दिया। एक ये भी हो सकता है कि विक्टिम बहुत डर रहा है जाने से, पर उसके पास कोई वकील होता है, वो इतला देता है कि सर यहाँ तो बहुत अनर्थ हो रहा है, पुलिस अंधेर नगरी है, सर कोई कुछ नहीं कर रहा है, डर रहे हैं वो लोग, सर अन्याय हो रहा है। तो याद रखना, मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो तीन तरह के कॉग्निजेंस होते हैं, पहला पुलिस रिपोर्ट यानी एफआईआर पे, दूसरा कंप्लेनेंट के कहने पे, और तीसरा सुओ मोटो। ये तीन तरीके हैं जिसमें वो अब प्री ट्रायल प्रोसेस शुरू कर सकता है। नाउ वंस दिस मैटर इज ओवर, तो फिर अब जजमेंट आता है। जजमेंट के बाद वी हैव सीन यस्टरडे कि जजमेंट इज द पेनल्टीमेट पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि जजमेंट के बाद आई हैव टू हेयर यू ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। अगर मैंने आपको सेंटेंस पे अलग हेयरिंग ना दी, तो फिर मेरा सेंटेंस विशिएटेड है, दोबारा करना पड़ेगा। तो वो संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का लैंडमार्क केस है, तो उसके अंदर फिर नाउ ही हैज टू डू इट अगेन। एक बार हमारा हो जाता है, जब एक बार सेंटेंस हो गया, ही सेंट टू द प्रिजन और फाइन या जो भी है, अब उसकी अपील होती है या उसकी रिवीजन होती है। अनलाइक सीपीसी जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें दो दो अपील होती है, यहाँ पे एक ही अपील होती है। सो देयर इज ओनली वन अपील हियर, अनलाइक सीपीसी जहां हमने देखा 5 तरह की अपील्स थी। अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स, सेकंड अपील, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन्स,
अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें यहाँ नहीं है। दो अपील टू सुप्रीम कोर्ट है, बट दैट इज गवर्न स्ट्रिक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स 132, 133 एंड 134। या अगर मैं स्पेशल लीव में जाना चाहता हूँ तो मैं 136 में तो किसी भी मामले में जा सकता हूँ। एक चीज और जो मैंने सबको बताई थी कि सीआरपीसी में या नाउ बीएनएसएस में हर कोर्ट को इनहेरेंट पावर नहीं दी गई, होते हुए भी छीन ली गई है। मैं ये कहूंगा हर कोर्ट में कोर्ट होने के नाते से इनहेरेंट पावर होती है। व्हाट इज इनहेरेंट पावर टू डू जस्टिस, तो वो तो होती ही है, बट हमने वो छीन ली और हमने क्लियरली कह दिया कि इनहेरेंट पावर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। उसका सुप्रीम कोर्ट का मैंने जजमेंट आपको बताया था। उसका रीजन ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कुछ कट एंड ड्राइड है, नथिंग इज लेफ्ट टू इमेजिनेशन। तो हर कोर्ट को कोई जरूरत नहीं है, उसमें बहुत कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ जाएंगी, बहुत सारी गड़बड़ हो जाएंगी। तो हम इसीलिए सिर्फ हाई कोर्ट को ये इनहेरेंट पावर दे रहे हैं, और लेजिस्लेचर ने जो सिर्फ इनहेरेंट पावर लेजिस्लेचर इसको हाई कोर्ट को दिया है, इसमें कुछ गलत नहीं है। दिस वाज अ क्विक, बहुत जल्दी रिकैप मैंने सिर्फ वही किया जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब इस सारी चीज को जो हम पढ़ चुके हैं, या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो होता है, जिस कोर्ट ने ट्राई करना है वो करता है। मोटी सी चीज याद रखना, जो कोर्ट ट्राई करेगा वही फ्रेम करेगा। तो ट्राई कौन कर रहा है सेशन कोर्ट में, तो फ्रेम कौन करेगा, सेशन कोर्ट। अब एक बार जल्दी से जो जो हमने इतने दो पता नहीं कितने दिन, 2 या 3 दिन व्हाटएवर, जो हम पढ़ा है उस चीज को एक बार दिमाग में फोर्टिफाई करते हैं। एक बार हम बीएनएसएस का इंडेक्स खोलते हैं और आप समझते हैं उसको। सॉरी, मैं एक पार्ट बताना भूल गया। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी 1898 के कोड में, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाती है उसको, वो था देयर वाज नो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का जो जहां तक सवाल है, वो इस 1973 के कोड में उनसे जुडिशियल पावर टोटली छीन ली गई। ऑफेंस से पहले रोल है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का, और एक बार ऑफेंस हो गया तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का काम खत्म और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का शुरू। सो याद रखना, जो रोल अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का बहुत बड़ा पार्ट है, इनफैक्ट 5 पावर्स दी गई हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को, वो प्योरली या तो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम पुलिस एक्ट में जाते हैं 1861, उसमें क्लियरली लिखा है दैट लॉ एंड ऑर्डर शैल बी द ड्यूटी द लायबिलिटी ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी कलेक्टर की जिम्मेवारी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन करना है तो मेरे पास कुछ, मुझे आप वेपन्स तो दो। फॉर एग्जांपल, मुझे प्रिवेंटिव एक्शन के राइट्स दो। सो प्रिवेंटिव एक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है बीएनएसएस का। प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो 3 तरह का होता है: प्रिवेंटिव एक्शन बाय मैजिस्ट्रेट्स, प्रिवेंटिव एक्शन बाय पुलिस एंड प्रिवेंटिव एक्शन बाय द पब्लिक। 3 तरह का। तो प्रिवेंटिव एक्शन में हम आएंगे बाद में। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पहली पावर दी गई है कि वो आपको बाइंड डाउन कर सकता है गुड बिहेवियर के लिए। सो 106, 107, 108, 109, 110, ये 4 सेक्शंस, जिसको हम कहते हैं 751 की कार्रवाई पंजाब में, वो यही होती है। 107 फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर। सो कोई मुझे पता है ये गुंडागर्दी करने वाला है, पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी 151 आईपी सीआरपीसी में, रेड विद 107, इसलिए इसको 751 कहते हैं। 107 का 7 7 और 51 151 का 51।
सो दैट इज द रीजन व्हाई हम उसको पकड़ के ले जाते हैं और उसको बोलते हैं कि सर इसको बाइंड डाउन करो, ये ऑफेंस करने वाला है। या कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है तो 110 में उसको बाइंड डाउन करते हैं। या कोई रात को पकड़ा गया तो उसको हमने रात को तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को छुपा क्यों रहे हो, 109 में कर दिया उसको। या कोई आप जज हो, आपके खिलाफ वो कहता है मैं आपको डराता धमकाता है कि मैं आपके खिलाफ डेफेमेटरी चीज छाप दूंगा, उसको हम अभी छापा नहीं उसने, पर वो डराता धमकाता है, सो नाउ वी कैन बाइंड हिम डाउन फॉर गुड बिहेवियर। तो ये बाइंडिंग डाउन फॉर गुड बिहेवियर इज अ प्रिवेंटिव एक्ट। ये काम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का, ये पहली पावर है। दूसरी पावर है प्योरली लाठीचार्ज वाली, कि जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ गई है, वहां पे फोर्स यूज कर सकता है या ऑर्डर दे सकता है पुलिस को कि आप इनके खिलाफ फोर्स। तो जितना भी फोर्स यूज होता है वो सीआरपीसी में आता है, सेक्शंस 129 टू 132 सीआरपीसी के। वो दूसरी पावर है, वो प्योरली डंडा पावर है। सी जहां पे हम आपको बाइंड डाउन कर रहे हैं और अगर आपने अपनी श्योरिटी ना दी तो हम आपको जेल में डाल देंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी है। तो उस केस में जुडिशियल में जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है वो क्वासाई जुडिशियल पावर्स यूज करता है अपनी, क्योंकि वो कोर्ट लगाता है और कोर्ट में वो डिसाइड करता है ये आदमी गुंडा है कि नहीं, इसको हमें इससे हमें मांगना है, कितनी सिक्योरिटी मांगनी है, वगैरह वगैरह। तो ये एक क्वासाई जुडिशियल प्रोसीडिंग है। पर जहां मैं कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर सामने मजमा आ गया है, सामने अनलॉफुल असेंबली आ गई है, उस पर डंडा मारना है कि मैंने गोली चलाने का ऑर्डर देना है, ये तो प्योरली एग्जीक्यूटिव पावर है। तो ये सेकंड पावर जो है वो प्योरली एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है, जो सिर्फ और सिर्फ आर्मी को कब बुलाना है, आर्मी अगर आ जाए तो वो क्या करेगी, मेरे को आर्मी कैसे बुलाना है, ये सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई हैं। ये इसकी दूसरी पावर है। तीसरी पावर जो है वो है जितनी भी पब्लिक न्यूसेंस है उसको हटाने की पावर। आप घर बना रहे हो, पूरा सड़क पे आपने अपनी गिट्टी डाल दी, बजरी डाल दी, सारे रास्ते बंद हैं, कोई आता है तो आप कहते हो गन है मेरे पास, खबरदार यहां से गुजरे, आप डर गए, तो अब क्या करो। अब नेचुरली यू कांट गो टू द दिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑन दिस मैटर। अब इसको थोड़ा कहोगे सर जरा आना देखना जरा हटाना, तो ये काम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करेगा। सो जितने भी पब्लिक न्यूसेंसेस हैं उनको हटाने का काम, उसका तरीका, सो सेक्शन 133 से लेकर 143 तक सारे के सारे यही है, जो इसकी तीसरी पावर है, जो स्पेसिफिकली पब्लिक न्यूसेंस को हटाने की पावर है। चौथी पावर जो है वो इमरजेंसी पावर है, कि टाइम नहीं है कि दूसरी पार्टी को बुलाएं, दंगा होने वाला है, आप यहाँ पे एक ऐसा भाषण दे रहे हो जिसमें सारे दो कम्युनिटीज के बीच में आग लग सकती है, तो मैं वेट करता रहूं, कौन पहले बुलाऊंगा, शो कॉज नोटिस दूंगा, तब तक तो आप पूरा आग लगा दोगे। तो अब वो इमरजेंसी सिचुएशन जो है जिसमें मैं बिना सुनवाई करे एक तरफ एक एक्सपार्टे ऑर्डर दे सकता हूं, जिसको हम कहते हैं 144 सीआरपीसी की पावर, जो बेसिकली एज ए सेड इमरजेंसी की पावर है, कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कहीं भी ऑर्डर दे सकता हूं, कल से 5 लोग यहां नहीं जाएंगे, कल से इस रोड पे नहीं जाओगे। तो वो सारी पावर जो है वो मेरे पास, एक जैसा कि मैंने बोला, वो भी एग्जीक्यूटिव पावर भी है, क्योंकि उसमें भी कोई क्वासी जुडिशियल नहीं है, क्योंकि आप एक तरफा ऑर्डर देते हो, वो भी एग्जीक्यूटिव पावर है। एंड फाइनली जो आखिरी पावर है वो है कि अगर जमीन पे झगड़ा होने वाला है, खेतों में, ये उसका खेत है उसका खेत है, दोनों रोज डांगे लेके आ जाती है, दोनों एक दूसरे का सर फाड़ने के लिए तैयार है, और अब पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पे इस जमीन की वजह से झगड़ा होने वाला है, तो अब वो आपको बाइंड डाउन कर सकता है फॉर गुड बिहेवियर, फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी या राइट्स ओवर फॉर एग्जाम्पल आपका ईजमेंट राइट था, आज उसका लड़का आ गया और खुद मर गया जिसने आपको ईजमेंट राइट दिया था, लड़का कहता है जो जाके दिखाए यहाँ से, अब वो अपनी कृपान ले आता है, कहता है आ, अब पता है पुलिस को, वो जाता है कि जी मैं भी, हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम भी 50 साल से जा रहे हैं, हम भी ले आ रहे हैं अपना। सो ऐसे केसेस में क्या करो, ऐसे केसेस में हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, प्रिवेंटिव पावर यूज करो, इन दोनों को बाइंड डाउन करो, और अगर दोनों फिर भी नहीं मानते तो जमीन पे आप ही ले लो, रिसीवर अपॉइंट कर दो, दोनों के ना रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये सारी पावर, ये 5 तरह की पावर जो है ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के पास है। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की जितनी भी पावर्स हैं, प्लीज मेंबर, कोई भी पावर ऑफेंस के बाद की नहीं है,
जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाती है या कंप्लेंट दर्ज हो जाती है, कोर्ट कम्स इनटू पिक्चर, जुडिशियल कोर्ट कम्स इनटू पिक्चर। सो याद रखना, ऑफेंस से पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ऑफेंस के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ऑफेंस से पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं है एक्सेप्ट अ फ्यू केसेस, एंड ऑफेंस के बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं है एक्सेप्ट अ फ्यू केसेस। आई होप आई एम क्लियर ऑन ये कैसे। फाइन, अब इसी चीज को दिमाग में रखते अब पूरे एक बार कंटेंट्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या अब हमें समझ आ रहा है। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, डेफिनेशंस वगैरह। दूसरा है क्रिमिनल कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन और उनके ऑफिसेस कौन से, जज कौन से, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कौन कौन है। ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट तीन होते हैं, एक होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो जज हो सकता है, मैजिस्ट्रेट हो सकता है, या फिर हमारा पीपी प्रोसिक्यूशन का ऑफिसर, और या फिर डिफेंस का ऑफिसर। तो देयर आर ऑलवेज थ्री ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। इसीलिए आप जब एडवोकेट बनते हो तो आप और कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आप पे एडवोकेट्स एक्ट 1961 लागू होता है। सो डिफरेंस क्या है कि लॉयर में और एडवोकेट में फर्क क्या है। आई एम अ लॉयर राइट नाउ बट आई एम नॉट एन एडवोकेट, क्योंकि मैं कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक बिजनेस चला रहा हूं। सो इसीलिए याद रखना वो क्यों है, जबकि मैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार अपियर हुआ हूं। उसका रीजन ये है कि एडवोकेट्स एक्ट कहता है कि यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो व्हेन यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट यू कांट डू एनी अदर थिंग। सो हमेशा याद रखना तीन ऑफिसर होते हैं, एक जो कुर्सी पे बैठता है और दो दो जो अदर ऑफिसर्स हैं, एक प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट करता है और एक डिफेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट्स, उसके बाद इन कोर्ट्स की पावर, उसके बाद जो पुलिस आ गई, पुलिस की पावर्स क्या है। पुलिस की पावर्स की जब मैं बात करता हूं, पूरी सीआरपीसी में या पूरे बीएनएसएस में सिर्फ दो पुलिस ऑफिसर्स का वर्णन है। ओनली टू ऑफिसर्स हैव बीन मेंशन्ड। वन इज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, 80% या 90% जगह इसका नाम है। सो सिर्फ ऑफिसर इन चार्ज और यहां अ पुलिस ऑफिसर। अ पुलिस ऑफिसर मींस एनी पुलिस ऑफिसर फ्रॉम अ कांस्टेबल टू अ डीजीपी। एक जगह सिर्फ या दो जगह सिर्फ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नाम आता है आज के दिन में। सिर्फ तीन पुलिस वालों का नाम है, ना डीआईजी का नाम है, ना डीजी का नाम है, ना आईजी का नाम है। सीआरपीसी किसी को नहीं पहचानता। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम आईजी को नहीं पहचानते, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का नाम नहीं है, या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का नाम नहीं है, तो क्या उसके पास पुलिस की पावर्स नहीं है। ये वाला चैप्टर बताता है कि हर पुलिस ऑफिसर के पास वही पावर्स हैं जो ऑफिसर इंचार्ज के पास है। तो एक जो थाना है वो थाने का इंचार्ज है, डीजी पूरी स्टेट का इंचार्ज है, तो वो स्टेट का थानेदार है। सो बेसिकली हर पुलिस ऑफिसर को पावर्स देता है ये वाला चैप्टर। लेट मी फिनिश। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन बी एनीबडी, कैन बी अ डीजी, कैन बी अ कांस्टेबल, कैन बी एनीबडी, एनी पुलिस ऑफिसर। तभी वर्ड इज एनी पुलिस ऑफिसर। सो याद रखना, एनी पुलिस ऑफिसर कैन मीन एनीबडी। इट कैन, दैट मीन जब मैं कहता हूं आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो कोई भी हो सकता है। मैंने एज एन आईजी भी मैंने इन्वेस्टिगेशंस की हुई हैं, तो मैं आईओ था। मैंने एज एसपी भी की हुई है, जब मैं नया नया ज्वाइन किया था आईपीएस में तो एज एएसपी भी की हुई है। थानेदार भी करते हैं, मेरे कांस्टेबल भी करते हैं। मैं गंगानगर में था तो मेरे कांस्टेबल करते थे सारी, जैसे छोटे केसेस एक्साइज केस के वगैरह, तो सारे कांस्टेबल्स करते। ओके, नेक्स्ट, अब जो टूल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, अरेस्ट ऑफ पर्संस, नेक्स्ट हाउ टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन, समन्स, वारंट ऑफ अरेस्ट या प्रोक्लेमेशन वगैरह। उसके बाद लोगों को तो हमने बुला लिया, चीजों को कैसे बुलाएंगे,
process to compel production of things, summons to produce, searches, search warrants. उसके बाद ये मामला अब बहुत तूल पकड़ रहा है कि 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई गुंडा है तो उसकी प्रॉपर्टी ले लो, क्योंकि वो उसने गुंडागर्दी से ली है। तो एक तो ये है कि सपोज उसकी प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है, तो ये वाला जो चैप्टर 8 है ये डील करता है रेसिप्रोकल हमारा रिलेशनशिप बाहर की कंट्रीज के साथ। तो बहुत सारे, जैसे दुबई में उसने बना ली प्रॉपर्टी, तो हम वहां पे भी तो कर सकते हैं, उसको सीज कर सकते हैं प्रॉपर्टी। वो कैसे करेंगे, वो इस चैप्टर में आया हुआ है। अब यहां से शुरू हो जाता है चैप्टर 9 से एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स। पहला, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस फॉर गुड बिहेवियर। उसके बाद चैप्टर 10 जो है वो बेसिकली सिविल लॉ को यहां इंपोर्ट किया हुआ है। मेंटेनेंस, ये क्रिमिनल लॉ का मैटर नहीं है, बट जैसा कि मैंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रिमिनल लॉ में रिलीफ ज्यादा जल्दी मिलता है, इसीलिए हमने इसको यहां इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स। इसमें देखो आप, अनलॉफुल असेंबली, पब्लिक न्यूसेंसेस। उसके बाद अर्जेंट केसेस, जो 144 होता था पहले, अब 163 हो गया, एंड डिस्प्यूट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सारी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स है। उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। उसके बाद यहां से शुरू होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो कायदे से चैप्टर 13 से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू होता है। एफआईआर 173 में दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 13। उसके बाद जुरिस्डिक्शन क्या है, कौन सा कोर्ट कौन सा केस ट्राई करेगा। अगर एक मैटर ऑफेंस जो है तीन डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, तो कौन करेगा। सपोज एक रनिंग ऑफेंस है, किसी को हमने अबडक्ट कर लिया, चंडीगढ़ से अंबाला, अंबाला से हम पंजाब ले गए, तो 3 स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई, कौन सा के करेगा। ये सारी चीजें कवर करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। उसके बाद अब मामला आ गया प्री ट्रायल, चैप्टर 15, प्री ट्रायल कॉग्निजेंस, कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि टेकिंग कॉग्निजेंस। उसके बाद दूसरा तरीका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट्स, चैप्टर 16। उसके बाद एक बार कॉग्निजेंस ले लिया, कंप्लेंट हो गई, मैंने आगे बढ़ाया, इश्यू ऑफ प्रोसेस, और एक्यूज को बुला के आगे क्या काम करेंगे। उसके बाद कमिटल अगर कैसे करेंगे, चैप्टर 17। उसके बाद एक बार आ गया, फिर अब मैं चार्ज लगाऊंगा। तो चार्ज जब मैं लगाऊंगा तो उसके तरीका क्या है, क्या कौन से चार्जेस कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका क्या है, ऑल अबाउट चार्जेस, चैप्टर 18, फॉर्म ऑफ चार्जेस, जॉइंडर ऑफ चार्जेस वगैरह। एक बार चार्ज लग गया, अब ट्रायल शुरू। सबसे पहला, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा, वारंट केसेस का ट्रायल, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, केसेस इंस्टीट्यूटेड बाय एफआईआर, दूसरा केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। का मतलब हो गया कि या तो कंप्लेंट केस है और या सुओ मोटो। इसका कंक्लूजन इस ट्रायल का। उसके बाद समन केसेस का ट्रायल, उसके बाद समरी ट्रायल। उसके बाद एक नया कंसेप्ट आ गया है, प्ली बार्गेनिंग। बाई चांस मैं एडमिट कर लूं, कन्फेस कर लूं, तो मेरी सजा कब कम की जा सकती है, ताकि जल्दी खत्म हो जाए केसेस, क्योंकि पेंडेंसी इतनी बढ़ गई है इंडिया में। तो अगर अगर बाई चांस दोनों रेडी हैं कि सर इसकी सजा कम कर दो और मुझे थोड़ा कंपनसेशन दे दो, तो फिर अगर दोनों राजी हैं तो अब प्ली बार्गेनिंग में जा सकते हैं। पर सारे केसेस नहीं जा सकते, फॉर एग्जांपल मर्डर में नहीं जा सकते। तो थोड़े नॉन सीरियस टाइप्स, नॉट वेरी सीरियस टाइप्स को हम प्ली बार्गेनिंग में ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई प्रिजन्स में है तो उनकी अटेंडेंस, चाहे वो विटनेस है और चाहे वो एक्यूज्ड है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे। उसके बाद इंक्वायरीज और ट्रायल्स में एविडेंस कैसे लिया जाएगा। अब ये जो मामला है, एविडेंस कैसे लिया जाएगा, यहां पे इट गोज हैंड इन हैंड विद इंडियन एविडेंस एक्ट। हर चीजें एविडेंस की
मैंने पहले ही बोला, एविडेंस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। बहुत सारी क्रिमिनल लॉ की चीजें यहां दी गई हैं, सिमिलरली सिविल लॉ की चीजें सीपीसी में दी गई हैं। सो यहाँ पे हम एविडेंस कुछ मामलों में कैसे लेंगे, जैसे कि मैंने बोला एफिडेविट से भी एविडेंस ले सकते हैं, मैंने बोला था आपको, वो चीजें यहां लिखी हुई हैं। उसके बाद हमारी जनरल प्रोविजंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जनरल प्रोविजंस इसमें सब कुछ आ जाता है। डबल चौपाटी, या फिर हम बात करें तो एक्यूज का 313 का जो एग्जामिनेशन होता है, या अगर कोई अप्रूवर बनना चाहता है उसका क्या होगा, अगर बाई चांस कोई छोटा केस है तो उसको प्रोबेशन पे हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो ऑल जितने भी हम कहेंगे मिसलेनियस मैटर्स हैं, वो सारे जनरल प्रोविजंस में आते हैं। उसके बाद एक्यूज जो अनसाउंड माइंड के हैं, उनका तरीका अलग होता है, बिकॉज पागल आदमी को हम ना तो कन्विक्ट कर सकते हैं और ना ही उसका ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज क्या होती है, नेचुरल जस्टिस। अगर एक्यूज को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो उसके साथ उसका ट्रायल कैसे हो सकता है, तो उसका फिर क्या करें। अगर कोई पागल आदमी आ गया तो उसका पूरा हमारा चैप्टर है। उसके बाद प्रोविजंस एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। व्हाट विल हैपन अगर कोर्ट के खिलाफ ऑफेंसेस हो। कोर्ट के खिलाफ ऑफेंसेस का मतलब है, फॉर एग्जांपल झूठी गवाही, या मैं कोर्ट पे झूठे डॉक्यूमेंट्स डाल रहा हूँ, फोर्जरी कर रहा हूँ, या अगर कोर्ट चाहे तो अब यहाँ पे सब्सटैंटिव पार्ट आ जाता है कि कोर्ट चाहे तो आपको, एक तो है कि आपने झूठ बोला, तो एक तो तरीका था कि मैं जाऊं 193 आईपीसी में पूरा ट्रायल चलाऊं। एक छोटा तरीका यहां दिया गया है जो समरी तरीका है। आपने झूठ बोला, ओके, आपको 6 महीने की सजा, वहीं के वहीं, एक एक दिन की हेयरिंग में। तो एक मैं ये कहूंगा, कहीं ना कहीं ये सब्सटैंटिव पार्ट है सीआरपीसी में, जहां पे कोर्ट वेरियस ऑफेंस, विटनेस नहीं आ रहा तो उसको आप सजा वहीं दे सकते हो, कोई झूठ बोल रहा है वहीं के वहीं सजा दे सकते हो। 193 में, 193 आईपीसी में जाओगे तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, छोटा प्रोसीजर, समरी प्रोसीजर, तो कोर्ट्स को पावर्स दी गई है। उसके बाद जजमेंट। जजमेंट के बाद अगर आप डेथ सेंटेंस दे रहे हो तो फिर उसको हमें रेफर करना पड़ेगा हाई कोर्ट को। जजमेंट के बाद अपील्स, अपील्स के बाद रेफरेंस एंड रिवीजन, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। बाई चांस ऐसा मामला है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वी वांट टू गेट इट ट्रांसफर्ड, तो कौन से कोर्ट्स इसमें कैपेबल हैं, सेशन कोर्ट कब कर सकता है, सीजीएम कब कर सकता है, अगर वो कर सकता है, हाई कोर्ट कब कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कब कर सकता है, ये सारी चीजें ट्रांसफर कब होंगे। उसके बाद एक बार सेंटेंस हो गया, फिर उसका एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। एग्जीक्यूशन में क्या क्या होगा, डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट या फाइन, तीनों चीजों का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। उसके बाद जो हमारी पावर है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैव द पावर टू कम्यूट, टू रिमिट, वो पावर्स अब स्टैच्यूट में कैसे आती है। वो तो प्रेसिडेंट था, अब ही हेड्स द एग्जीक्यूटिव, या गवर्नर हेड्स द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, तो स्टेट यानी होम डिपार्टमेंट अब कैसे करेगा। तो वो जो वहां हमें बताया गया है कि ये पावर प्रेसिडेंट की है, पार्डन की, रिमिशन की, कॉम्यूटेशन की, उसका स्टैट्यूटरी तरीका क्या है, तो अब वो स्टेट कैसे करेगी वो सारा। सो रिमिशन एंड कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद बेल। बेल जो है वो 3 जगह होती है, जहां अरेस्ट होता है वहां बेल भी होती है, मोटी सी चीज है। 3 बार अरेस्ट होता है एक केस में और 3 बार ही बेल होती है। पहला अरेस्ट होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, दूसरा अरेस्ट होता है ट्रायल के लिए, और तीसरा अरेस्ट होता है जेल में भेजने के लिए। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, अगर वो नॉन बेलेबल है तो आपको गिरफ्तार करेंगे, इवन बेलेबल है तब भी गिरफ्तार करेंगे, बेल ले लेंगे। जैसे मेरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, मेरा काम खत्म, अब कोर्ट आपसे बेल लेगी कि अब तुम्हारा ट्रायल शुरू होने वाला है, तुम हाजिर रहोगे। एक बार केस खत्म हो गया, आपने जजमेंट दे दी, अब आपको जेल भेजना है, वो कहता है जी मैंने अपील डालनी है, तो फिर हम उसको वापस गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। अब यहां चाहे तो बेल ले सकते हैं
कि तुम जब तक अपील नहीं डाल रहे। तो सारा प्रूव, एंटिसिपेटरी बेल, तो ये सारे प्रोविजंस टोटल, कौन से कोर्ट्स कॉम्पिटेंट है, किन हालात में बेल दी जाएगी, बिलेबल में क्या होगा, नॉन बिलेबल में क्या होगा, ये सारी चीजें एक चैप्टर में आ गई, बेल्स एंड बॉन्ड्स। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है। प्रॉपर्टी जो है, मेरी कार है या मेरा ट्रक है या कुछ भी है जो पुलिस ने जब्त कर लिया, उसको छोड़ने के लिए मैं कह रहा हूं, छोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक तो ड्यूरिंग द ट्रायल, एक आफ्टर द जजमेंट। तो डिस्पोजल कैसे करोगे? तो प्रॉपर्टी का पूरा डिस्पोजल, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद जो हम सेक्शन 99 सीपीसी में पढ़ चुके हैं वो यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। छोटी मोटी गलतियों से ट्रायल सेट असाइड नहीं करना। तो छोटी मोटी गलतियां कौन सी हैं? यानी इरेगुलरिटीज। तो इरेगुलरिटीज क्या है और इलीगैलिटीज क्या है, कौन से मामलों में हमको सेट असाइड करना पड़ेगा, कौन से में नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारा एक चैप्टर में दे दिया, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स। और एंड में आ गया लिमिटेशन। सो लिमिटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिमिटेशन लॉ में नहीं है, क्रिमिनल लॉ का, बट यहां है। सो दिस सेकंड लास्ट चैप्टर डील्स विद लिमिटेशन। एंड फाइनली द मिसलेनियस थिंग्स। उसमें कोई कोर्ट अगर सपोज इंटरेस्टेड है तो वो कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, या इनहेरेंट पावर किसके पास है, वो सारी चीजें, ऑल दीज मिसलेनियस। अब बाई चांस आर्मी का मामला है तो आर्मी का राइट तुम आपका है क्या? आपका है। सपोज एक आर्मी वाले ने मर्डर किया है, अब वो मिलिट्री पुलिस आ गई जी कि हम ले जाएंगे, अबे तुम कौन होते हो? जज मैं हूं कि तुम? वो ले जाएंगे। तो ये चीज कहाँ लिखी है? ये सीआरपीसी में लिखी है। ये सारी मिसलेनियस चीजों में आते हैं। इतनी है बस, नॉट सो डिफिकल्ट। जो हमें लगती थी कि बड़े कोई खतरनाक सी चीज है, अब तभी व्हेन यू वंस यू मेक अ कंप्लीट, दिमाग में एक मैप बना लेते हो, फिर सिंपल हो जाती है, फिर मुश्किल नहीं है। चलिए अब इसको, जो हमने इतनी फास्ट में सारा खत्म कर दिया, अब पीस मील एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं टू द डेफिनेशंस। सी लॉ जो है ना वो हुआ नहीं होता, हम हुआ बना देते हैं। ऑल ऑफ अस मेक लॉ मॉन्स्टर्स एंड थैंक्स टू आवर टीचर्स। खैर एटलीस्ट आई मस्ट एडमिट एंड कन्फेस कि मुझे तो लॉ बड़ा ही खतरनाक लगता था। आई डोंट नो हाउ आई गॉट थ्रू आईपीएस, क्योंकि उसमें लॉ मेरा पेपर था एंड आई स्कोर्ड द मैक्सिमम इन इट। बट मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि एक डराने का एटीट्यूड रहता है टीचर्स का। आई मीन नॉट ऑल, दे हैव सम वेरी गुड टीचर्स आल्सो। ये कहाँ आएगा तुम्हें, ये बड़ा मुश्किल, इतना सा कर ले बस। तो अप्रोच है ऑल, ये नहीं कि यहाँ तो फिर भी बेटर है। हर जगह अप्रोच ये है कि क्या करना है इतना डिटेल में पढ़ के, एग्जाम में तो आएगा नहीं, पढ़ना क्यों है। तो ये जो अप्रोच है ना ये गलत है। बिकॉज हम, एज ए सेड, लॉ इज आवर ब्रेड एंड बटर। अगर हम लॉ को एंजॉय नहीं करेंगे, उसे कमाएंगे कैसे? फिर आप सारी उम्र क्या होता है जो एक्चुअली होता है, अब देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग आउट ऑफ एलएलबी एवरी ईयर, सारे जूनियर बन के रह जाते हैं। वो सीनियर, उसको 6 महीने तो वो इसी में खुश रहता है कि काला कोट मिल गया, वो बैंड पहन लिया, इसी में बड़ा नेचुरली स्टिकर लगा लेते हैं स्कूटर पे, कार पे, या कोई भी आता है अपने आप को लिखते हैं एडवोकेट। सारे एडीवी, जितने मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं ना, मुझे ऐड करो, मैं हंसता भी हूँ, एडवोकेट सो एंड सो। अच्छा सर, कर लेता हूँ सर। सो you live in what I call fool's paradise, कि हम तो बन चुके एडवोकेट साहब, वकील साहब सब कहते हैं, पर अंदर की बात तो हम जानते हैं। वो आपको तब पता चलता है जब आप कोर्ट में जाते हो। बोल क्या रहे हैं ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मेरा जो सीनियर है, यार क्या इंटेलिजेंट आदमी, क्या बोल रहा है, बिकॉज हमने लॉ पढ़ा नहीं। आज ये मेरे स्टूडेंट्स जैसे ये खत्म करते हैं ना मेरा कोर्स, वो आते कहते हैं सर सीनियर को तो कुछ नहीं आता। 90% come back to me and tell me, sir, I am very sorry, my senior doesn't know anything. He knows very little law. थोड़ा सा आता है बस, उसी पे रहता है। Because your horizon, suddenly when you know, then you become, forced to reckon with. अभी तक तो क्या है, ignorance is a bliss, वो हाल है। तो वो ब्लिस में से आप जब निकलते हो, जब यहाँ पे शॉक लगता है कि ये क्या हो रहा है,
इतना डिटेल है, तब जाके आपको लॉ, पहले जैसे मैंने बोला है ना, पहले शॉक लगता है, फिर एक महीने बाद आपको लगता है नहीं यार यही लॉ है, फिर आप भागना शुरू होते हैं मेरे साथ साथ। सो आई विल ऑलवेज एडवाइज यू कि हर चीज को बहुत सीरियसली लो, नॉट बिकॉज हमने जज बनना है, वो तो बन जाएंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं से बन रहे हैं, इसलिए करना है बिकॉज हमारा हमारा सब कुछ ही लॉ है, हमने चूज किया था ये लाइन, सोच समझ के की है। यहाँ तो ना कि मैंने यार क्या करूं, मैं तो बनना ही नहीं था, बन गया। हमने सोच समझ के बड़ी खुशी खुशी लिया, और जिस चीज के लिए हम, जो हमारी जिंदगी है जिस चीज की, वो ही नहीं आती। सो आई थिंक वी आर जस्ट फूलिंग आवरसेल्व्स। जितनी जल्दी उसमें से बाहर निकल आए, और उसका एक ही तरीका है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। Unfortunately, you don't get the right teachers. I didn't have the good luck of finding very good teachers. खुद मेहनत करनी पड़ती है, बट अगर आपको मिल रहा है तो उस चीज को लैप अप करो, उसको और ज्यादा बढ़ाओ, और एक स्टेप और आगे जाओ, सो दैट व्हेन यू आर थ्रू, जज तो बन जाओगे। मैंने बोला ना, जज बनना इज नॉट द अल्टीमेट एम। अल्टीमेट एम इज दैट यू हैव टू बी मास्टर्स ऑफ योर लॉ। एक बार आप मास्टर बन गए, याद रखना सारे दरवाजे खुलेंगे। तो कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जज बनने के बाद छोड़ रहे हैं, ऐसा जज नहीं बनना, मैं बेल में 3 लाख रुपए ले लेता हूँ, यहाँ तो 1.25 लाख मिलता है, बहुत है। आई हैव 3-4 स्टूडेंट्स हु हैव लेफ्ट एंड दे आर बैक इनटू, सुप्रीम कोर्ट चला गया एक तो वो सब इसीलिए होता है दैट यू नो योर लॉ। कोई लॉ ले लो, मुझे आता है, और अच्छी बारीकियों में आता है। जब बारीकियों में आता है, फिर कौन सीनियर, फिर तो सीनियर हमें। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। नाउ व्हेन आई कम टू डेफिनेशंस, डेफिनेशंस कभी भी किसी भी लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वो हमें बेस बताती हैं, दैट दे फॉर्म द बेसिस ऑफ एनी लॉ। इसमें कुछ डेफिनेशंस ऐड हुई हैं इसमें भी डेफिनेशंस जो हैं वो अल्फाबेटिकल कर दी गई हैं। लेट्स गो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस गिवन हियर। यहाँ पे हम जा सकते हैं हैप्पैज़र्डली भी, जैसे कि मैंने बोला एविडेंस एक्ट में भी कुड नॉट, क्योंकि वो एक ढंग से लिखी हुई थी। ये मोर और लेस ये ढंग भी सही है, चल सकता है। पहला, जो पहला इसमें ऐड किया गया है वो नया है डेफिनेशन, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। पहले जो था वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स तो बहुत बाद की बात है। इवन टेप रिकॉर्ड के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। टेप रिकॉर्डेड एविडेंस को बहुत ही शक की नजर से देखते थे। मलकानी वर्सेस मलकानी एंड बहुत सारे केसेस हैं। उनका 5 सीज होने चाहिए तब जाके टेप रिकॉर्डेड, वो आज भी इंपॉर्टेंट है। बट मैं वही बता रहा हूँ कि वो युग अलग था, ये इलेक्ट्रॉनिक एज है, इसीलिए हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती है। अब आपको जो एक्यूज है उसको पेश करने की जरूरत नहीं है, आप उसको जेल से ही उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा सकते हो। पर इस चीज को यू हैव टू मेक इट लॉ ना। आप कर तो सकते हैं, हमें पता है, पर कौन से लॉ? कल को मेरे जैसा वकील कहेगा जी बताओ कि कौन से लॉ में आपने किया। इसीलिए लॉ बनाना जरूरी था। पर लॉ बनाने से पहले नेचुरली सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इसको वैलिडेट करता है। तो जो ऑडियो वीडियो मीन्स को वैलिडेट किया था, एक लैंडमार्क जजमेंट था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को पहली बार वैलिडेट किया था। सो महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई, 2003 सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए अब इस नए वाले लॉ में इसको ऐड किया गया। ऑल्सो लेट मी टेल यू, 3 लॉज हमारे नए आए हैं, बीएसए, बीएनएस एंड बीएनएसएस। बीएसए में बहुत कम चेंजेस हैं, बहुत ही मिनिस्क्यूल चेंजेस हैं, सेम ही है, बस उल्टा पुल्टा किया। बीएनएस हम पढ़ चुकी हैं, उसमें पनिशमेंट्स में चेंज था, यहाँ वो ऑर्गेनाइज क्राइम आ गया, या पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, या टेररिस्ट एक्ट, या थोड़ा बहुत हमारा सेडिशन का लॉ चेंज हुआ है, अदरवाइज सेम था, हम पढ़ चुके हैं, पूरा खत्म ही कर दिया। मैक्सिमम चेंजेस यहाँ आए हैं। बीएनएस में आराम से कह सकता हूं कि बहुत सारे चेंजेस हैं, इवन स्ट्रक्चरल चेंजेस है। तो इसलिए यहां ध्यान देना है हमें कि यहाँ पे वी कांट टेक इट लाइक बीएनएस या बीएसए
जहां पे बहुत कम चेंजेस हैं, जो हम ना भी करें तब भी वो पुराना लॉ चलेगा। यहाँ नहीं है, यहाँ पे बहुत चेंजेस हैं। जैसे कि ये पहला चेंज, audio video electronic means shall include use of any communication device for the purposes of video conference. Communication device can be anything, can be a laptop, can be a mobile phone, कोई भी ऐसी चीज जिससे कम्युनिकेशन की जा सकती है। Any communication device for the purposes of video conferencing, recording of process of identification, search and seizure, or evidence, transmission of electronic communication, and for such other purposes and by such other means as the state government may by rules provide. यानी कुछ भी आपने करना है वो सब ऑडियो वीडियो मीन्स में आएगा। चाहे आपको कोई सीजर कर रहे हो, आपने सीज कर लिया फोन पे करके, या आप कुछ एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हो, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आज के दिन में ऑडियो वीडियो मीन्स की परिभाषा में आता है। और अब जहां भी लिखा होगा सीआरपी से बीएनएसएस में ऑडियो वीडियो मीन्स, इसका मतलब है आप कुछ भी ऑडियो वीडियो मीन्स से कर सकते हो। यही चीज हमने देखा था कि सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन ने सीपीसी में कही कि अगर कमिश्नर्स कुछ कर रहे हैं या आप भी कुछ ऐसा कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग कर लो, ऑडियो वीडियो मीन्स को करो। सो ऑडियो वीडियो मीन्स हैज टेकन अ ह्यूज इंपॉर्टेंस इन बोथ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल इफेक्ट दैट ऑडियो वीडियो मीन्स आर बेसिकली, प्लीज रिमेंबर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आते हैं। And documentary evidence prevails over oral evidence. It is the best evidence. इसीलिए Supreme Court and now even our lawmakers are concentrating on ऑडियो वीडियो मीन्स। इसलिए एक बड़ी ओपन सी डेफिनेशन दे दी, कुछ भी आप कर रहे हो ऑडियो वीडियो मीन से, चाहे एविडेंस इकट्ठा कर रहे हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो जो इकट्ठा कर रहे हो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, वो हम ऑडियो वीडियो मीन्स में लाएंगे। Now, next word is bail. बेल वर्ड पहले डिफाइंड नहीं था, अब हुआ है। 3 वर्ड्स यूज होते थे पहले, बेल, बॉन्ड, बेल बॉन्ड, ये 3 वर्ड्स यूज होते हैं मतलब इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। बॉन्ड का मतलब होता है पर्सनल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा मंत्री है, कोई बहुत बड़ा पब्लिक फिगर है, वो कहां भाग के जाएगा, तो वो पर्सनल बॉन्ड देता है कि मैं हाजिर हो जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के खिलाफ डिफेमेशन का केस हुआ गुजरात में, ही नीड नॉट पुट सिक्योरिटी, वो कहां जाएगा, कहीं भी जाएगा, इज रिकॉग्नाइज्ड, पूरी मीडिया पीछे है। सो ऐसे केसेस में ही कैन गिव अ पर्सनल बॉन्ड, उसको हम बॉन्ड कहते हैं। बेल बॉन्ड का मतलब होता था, बेल का मतलब होता था पहले पैसा, कि आप पैसा एज श्योरिटी रखो। तो जहां पे हम बेल बॉन्ड कहते थे पहले, उसका मतलब होता था पैसे देके श्योरिटी। अगर मैं ना आया अगली बार तो ये मेरा पैसा जब्त। 2 लाख रुपए की बेल, यानी 2 लाख रुपए मैंने आपके पास जमा करा दिए, अगर मैं अगली पेशी में ना आया तो मेरे 2 लाख रुपए जब्त। उसके बाद एक कंसेप्ट हुआ कि जो अमीर लोग हैं वो तो फिर भी भाग जाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, श्योरिटी को लाते हैं कि अगर वो ना आए तो तुझे अंदर कर देंगे। तो वो वहां से कंसेप्ट आ गया श्योरिटी। अब नेचुरली ये तो हम बात कर रहे हैं जो ओरिजिनल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस, पर आज के दिन में क्या हुआ, हमने इसको सिंपल कर दिया। चलिए अब तीनों डेफिनेशंस देखते हैं। बेल, बेल मींस रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ or suspected of commission of an offense from the custody of law. Custody of law मैंने बताया 3 जगह होती है, पहले इन्वेस्टिगेशन, दूसरा ट्रायल और तीसरा सेंटेंस के बाद। So bail means release of a person accused of or suspected of commission of an offense from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court or on execution by such person of a bond और अ बेल बॉन्ड। यानी बेल आपको बॉन्ड पे, पर्सनल बॉन्ड पे भी दी जा सकती है या बेल बॉन्ड पे भी दी जा सकती है। तो क्वेश्चन उठता है कि बेल बॉन्ड का आज के दिन में मतलब क्या है। उसके लिए आते हैं हम डी पे। बेल बॉन्ड मींस एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज
विद श्योरिटी। नाउ याद रखना, श्योरिटी पैसा भी हो सकता है, श्योरिटी बंदे भी हो सकते हैं। So surety here has a very wide connotation. Surety does not mean only bande, it can also mean पैसा। सो बेल होता है कि आपको हम लॉ से हम आपको मुक्त कर रहे हैं ऑन फुलफिलिंग सम कंडीशंस, जो पर्सनल बॉन्ड हो सकता है या bond on some surety. This surety can be in the form of money or can be in the form of persons. Bond, अगला word E, bond means a personal bond or an undertaking for release without surety। जैसे कि मैंने बोला, बड़े जो लोग होते हैं उनको हम पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देते हैं। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दीस थ्री। ये तीनों वर्ड्स पहले डिफाइंड नहीं थे, ये पहली बार डिफाइन हुए हैं बीएनएसएस में। बेलेबल ऑफेंस डिफाइंड था पहले भी। तो जब हम सी में आते हैं, व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस? बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force. Non bailable means any other offense. So bailable वो होता है जो फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी में या बीएनएसएस में लिखा हुआ है। तो जो अगर हम बीएनएस में जाते हैं तो फर्स्ट शेड्यूल में कौन से बेलेबल ऑफेंसेस हैं, वो बेलेबल हैं। या अगर हम बीएनएसएस के सेकंड पार्ट में जाते हैं फर्स्ट शेड्यूल के, तो जो लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं उनमें बेलेबल कब हैं। फर्क बेसिकली क्या होता है, अगर हम बेसिक फर्क बात करें बेलेबल और नॉन बेलेबल, बेलेबल ऑफेंसेस ज्यादातर वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पे बेल इज अ राइट। आई कैन डिमांड बेल एज अ राइट। आपको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। आप कंडीशन लगा दो, कोई भी कह दो ठीक है श्योरिटी ले आओ, मैं ले आऊंगा, पर आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप मेरे कंडीशंस पूरे कर रहे हो तो मुझे आपको इमीडिएटली एज अ राइट छोड़ना पड़ेगा। बेलेबल ऑफेंसेस ज्यादातर वो ऑफेंसेस होते हैं जो ज्यादा सीरियस नहीं होते, नॉट वेरी डेंजरस फॉर सोसाइटी। तो जो भी बेलेबल ऑफेंस में पकड़ा जाता है, ही इज ट्रीटेड इन टू डिफरेंट वेज। पहला, whenever he is detained without a warrant, he has a right to be released। दूसरा, अगर वो कोर्ट में जाता है डायरेक्टली तो कोर्ट को उसको छोड़ना पड़ेगा। हाउएवर जब मैं कहता हूं छोड़ना पड़ेगा, ये मतलब नहीं है कि मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता। बेल गिरफ्तारी के बाद होती है। सो बेलेबल ऑफेंस डज नॉट मीन दैट ही कैन नॉट बी अरेस्टेड, ही शैल बी अरेस्टेड। अरेस्ट होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो जब हम उसको कहते हैं उसको छोड़ेंगे, किस बात पे छोड़ेंगे, तो हम एक उसको सिंपल सा कोई ना कोई सी एक चीज होता है कि जब मैं उसको कंडीशन से छोड़ता हूं, मैं ऐसी कंडीशन लगा दूं जो वो पूरी कर ही नहीं सकता, जिसको हम कहते हैं ओनरस कंडीशंस। तुम एक काम करो, एक डीजी की सिक्योरिटी लाओ, वहां भी पड़ेंगी उसको ना, ये चीज उसको पता पूरी नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट इज very vehement on this. There are umpteen number of judgments on this in which the Supreme Court has held कि जहां मैं onerous conditions लगाता हूं, it amounts to rejection of bail। तो आपको ऐसी कंडीशंस नहीं लगानी जो वो पूरी कर ही नहीं सकता। और जहां आप ऐसी कंडीशन लगा रहे हो, एक तरह से हम मानेंगे कि आप लॉ को हुडविंग कर रहे हो, आप जान के रिजेक्ट करने के बजाय ऐसी कंडीशन लगा रहे हो विच एक्चुअली मींस रिजेक्शन ऑफ बेल। तो आप पहला पॉइंट ये है कि बेलेबल केसेस में ओनरस कंडीशंस नहीं लगा सकते। एंड जैसा कि मैंने दूसरी बात कही, ही हैज अ राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। नॉन बेलेबल क्या हो गया इसके उल्टा, यानी कि ही हैज नो राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। नॉन बेलेबल केसेस में हम आगे जाके देखेंगे, ये गलत फहमी है लोगों को कि पुलिस उसमें नहीं छोड़ सकती। जब हम आते हैं
436 CRPC deals with billable, 437 deals with non billable. उसमें लिखा है कि एनी पुलिस ऑफिसर और जुडिशियल ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट, सो पुलिस भी ले सकती है, बट ये है ना कि लेके फिर क्या करेगी, कल को उसकी जिम्मेवारी हो जाती है, इसलिए हम ज्यादातर वहां ले जाते हैं। पर अगर बाई चांस कोई, फॉर एग्जांपल मैंने एक बार बेल ली थी, एक केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मैं डीआईजी था उस टाइम पे, मुझे लगा इसकी बेल ले लेनी चाहिए, मैंने ले ली, बिकॉज इट वाज अ केस ऐसा था। तो नो, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि इट इज अ इलीगल ऑर्डर। मैं कहा नो, रीड योर सीआरपीसी, एंड देन इट वाज, आई वाज राइट। सो एक चीज याद रखना, ये नहीं है कि नॉन बेलेबल में पुलिस बेल नहीं ले सकती, ले सकती है, पर फिर आगे बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उसको मैं कहां भेजूं, अगर भाग गया तो फिर मेरी जिम्मेवारी, वो कहेंगे जी पैसे खाए होंगे इसने। सो 100 लफड़े होते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई वी डोंट। पर ये नहीं है कि ले नहीं सकते, ले सकते हैं, पर लेते नहीं। एज ए जनरल, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एज ए जनरल रूटीन, एज अ रूल, पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है ये रूल ऑफ बिहेवियर है हमारा कि हम नहीं लेते। Okay, I hope everybody is clear on this word. We go to the next word, which is charge. Charge की definition नहीं दी गई. Charge includes any head of charge when the charge contains more heads than one. टेढ़ी मेढ़ी, मुझे समझ नहीं आता। मैं जब पढ़ता था एलएलबी में, तो मैं यही सोचता था इतनी गंदी गंदी डेफिनेशन क्यों देते हैं, एक तो डिफाइन कर रहे हो, वो भी और कंफ्यूज कर रहे हो। सीआरपीसी डज नॉट डिफाइन अ चार्ज, इट बेसिकली सेज कि जब एक से ज्यादा चार्ज लगते हैं तो हम उनको एक चार्ज मान सकते हैं। तो एक हेड, फॉर एग्जांपल मैं आपके खिलाफ एक चार्ज और लगा रहा हूं, तो एक ट्रांजैक्शन में आप मेरे घर में आए, आपने पहले हाउस ब्रेकिंग की, फिर मेरे खिलाफ ग्रीवियस हर्ट किया, मेरी वाइफ के खिलाफ 354 किया, तो अलग अलग चार्जेस लगेंगे। एक गोल्डन प्रिंसिपल याद रखना, ईच चार्ज corresponds to a separate offense. Every actus reus constitutes a separate offense, जिसको हम सीआरपीसी में चार्ज कहते हैं। चार्ज क्या होता है, जो ऑफेंस मैजिस्ट्रेट की नजर में ऑफेंस बना है। सो चार्ज जो होता है वो पुलिस का जो एक्यूजेशन है फाइनल रिपोर्ट का, वो चार्ज नहीं है। जो मैजिस्ट्रेट आपको इश्यू ऑफ प्रोसेस करके बुला रहा है और कहता है आई चार्ज यू विद दीज ऑफेंसेस, वो होता है चार्ज। सो एक चीज याद रखना, चार्ज वर्ड सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है या कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। सो बेसिकली व्हाट इज अ चार्ज? Charge is a precise formulation of a specific accusation made against a person by the court. So, charge is a precise formulation of a specific accusation made against a person by the court. So, एक चीज याद रखना, charge is not synonymous with an offense. चार्ज और ऑफेंस सिनोनिमस नहीं है। चार्ज होता है जो हम इंक्वायरी के बाद, प्री ट्रायल के बाद, एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद, कॉग्निजेंस के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। सो चार्ज मींस ऑफेंस प्लस जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड। सो चार्ज जो है वो ऑफेंस नहीं होता, चार्ज होता है ऑफेंस प्लस जुडिशियल दिमाग लगा हुआ है उसमें, तब जाके वो चार्ज बनता है। इसीलिए प्लीज मेंबर, हम ऑफेंस वर्ड यूज नहीं करते। एक बार कॉग्निजेंस ले लेता है मैजिस्ट्रेट तो हम हमेशा वर्ड चार्ज यूज करते हैं। तभी हम कहते हैं, फ्रेमिंग ऑफ ऑफेंस नहीं कहते, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहते हैं। नहीं तो फ्रेमिंग ऑफ एक्यूजेशन कह देते, फ्रेमिंग ऑफ एलिगेशन कह देते, हमने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। क्यों? चार्ज इज मच डीपर देन एन ऑफेंस, मच डीपर देन एन एक्यूजेशन। इट इज बेसिकली, एज आई सेड, it can be taken as offense plus usage of the judicial mind.
उन ऑफेंस के ऊपर दिमाग लगा के जो हमारा नेट प्रोडक्ट आया उसको चार्ज कहते हैं। और यही चार्ज क्योंकि मैं अब जैसे कहता हूं कि मैं ये चार्ज है, इसका मतलब है मैं कन्विंस हूं, मैंने तो अपना दिमाग लगा लिया, तूने ये किया है। इसीलिए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या होता है, मैं कन्विंस्ड हूं कि तूने किया है। तू कन्विंस है क्या? तू हाँ करता है? अगर वो कहता है हाँ सर मैंने किया, गलती हो गई, ठीक है, खत्म कहानी। अब वो कहता है सर आप कहते रहो, मैं नहीं मानता। तो यहां पे प्लीज मेंबर, जब भी हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करते हैं तो दो ऑपोजिट चीजें होती हैं, एक कहता है हाँ और एक कहता है ना, हमेशा याद रखना। तो चार्ज का मतलब ही ये होता है, एक तरफ तो पक्का है, कोर्ट इज ऑलरेडी मेड अप इट्स माइंड, यस यू हैव डन इट, मैंने दिमाग सब चीजों, जो रिकॉर्ड था, जो फाइल थी, सब देख चुका हूं, उसके बाद इस निष्कर्ष पे आया हूं। सो दैट बिकम्स द चार्ज। रन आउट ऑफ टाइम, हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। राहुल, कोई जरूरत नहीं है पर्सनल बॉन्ड में। थैंक यू।